দুর্গাপুজো চলে যাওয়ার পর কালী পুজোর একটা ভিড় আমরা দেখি বারাসাত রানাঘাট সেকশনে। তাই এবছর পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশনে অতিরিক্ত 8টি লোকাল ট্রেন চালাচ্ছে, মানে 4 পেয়ার্স লোকাল ট্রেন চালাচ্ছি আমরা শিয়ালদা ডিভিশনে কালী পুজো এবং ভাইফোঁটা দীপাবলির জন্য। শিয়ালদা থেকে ডানকুনির উদ্দেশ্যে আমরা 31 তারিখে রাতের বেলায় 11:30 একটি ট্রেন ছাড়বে, যেটি শিয়ালদা থেকে ডানকুনি যাবে। সব স্টেশনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যাবে। দক্ষিণেশ্বরের তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্টেশন, যেখানে ভিড়টা হয় আমরাও জানি, আপনারাও জানেন। পরে আরেকটি ট্রেনের কথা বলি, শিয়ালদা থেকে বারাসাতের কালী ঠাকুর দেখার জন্য মানে চারদিক থেকে মানুষজন আসেন। শিয়ালদা বারাসাতের ট্রেনটি 31 তারিখ এবং 1 তারিখের মধ্যরাতে যে রাত্রি, সেখানে রাত্রি 12:10 শিয়ালদা থেকে ছাড়বে। আমরা বলছি শিয়ালদা থেকে বারাসাত যাওয়ার জন্য রাত্রি 31 তারিখ এবং 1 তারিখে যে মধ্যরাত, তার 12:10 ছাড়বে। আপনারা যে বারাসাতে ঠাকুর ঘুরে দেখে আসতে পারবেন। আর আরেকটি ট্রেন শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, ওটিও 31 এবং 1 তারিখের মধ্যরাতেই 12:40 ছাড়বে। অপর আরেকটি ট্রেন বারুইপুরের উদ্দেশ্যে যাবে, সেটিও শিয়ালদা থেকে 31 এবং 1 তারিখের মধ্যরাতে 12:30 শিয়ালদা স্টেশন থেকে ছাড়বে। যদিও 31শে অক্টোবর একটা ছুটির দিন, তবুও অন্যান্য যে উইকডেজের মতোই আমরা কিন্তু শিয়ালদা ডিভিশন থেকে সেদিনকে সমস্ত লোকাল ট্রেন চালাবো। হ্যাঁ, অন্য উইকডেজে যেমন আমরা চালিয়ে থাকি, যেটি সমস্ত হল স্টেশন এবং ফ্ল্যাগ স্টেশনেও দাঁড়াবে, যাতে কালী পুজো আপনারা ভালোভাবে দেখতে পারেন, আনন্দ করতে পারেন। ধন্যবাদ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। उत्तर 24 परगना के बसीरहाट महकमा के स्वरूपनगर थाने के बीथरी हकीमपुर ग्राम पंचायत के भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित बीथरी के बीएसएफ कैंप नंबर 143 से आज बीएसएफ जवान का शव बरामद किया गया। जवान का नाम सत्येंद्र पाल था। बीथरी के बीएसएफ कैंप नंबर 143 में सत्येंद्र पाल लंबे समय से यहाँ सीमा रक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनका घर उत्तर प्रदेश के बुलंदेश्वर इलाके में है। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे जब बीएसएफ जवान को अचेत अवस्था देखा गया और इसके बाद उसे स्वरूपनगर सराफुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में बीएसएफ जवान के शव को स्वरूपनगर थाने ले जाया गया। व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए बसीरहाट स्वास्थ्य जिला पुलिस बैरक में भेज दिया गया है। बीएसएफ अधिकारियों ने मौत के कारण की आंतरिक जाँच शुरू कर दी है। मृतक जोन के परिवार को सूचित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। भवानीपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 70 के 2/3 जस्टिस द्वारिकानाथ रोड पर करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे देखा और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शंभुनाथ पंडित हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भवानीपुर थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है।
मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मेयर फिरहाद हकीम पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता के अयोग्य और निकम्मे मेयर फिरहाद हकीम की घोर विफलता और नगरपालिका की योजना की घोर कमी के कारण एक युवक की असमय जान चली गई। बिहार के रहने वाले 25 साल के सौरभ गुप्ता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ही विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर इलाके में जमा पानी में करंट लगने से मौत हो गई, जबकि राज्य की असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल सरकार के बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के पाप को छुपाने और लोगों के बीच अपनी खोई हुई छवि को सुधारने के लिए आखिरी प्रयास कर रही है। वह रात में नाटकीय रूप से नवान में जाग रही है, लेकिन सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण एक युवक की उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जान गंवानी पड़ रही है। क्या इस घटना के बाद भी आप और अयोग्य और निकम्मे मेयर फिरहाद हकीम पद पर बने रहने का सपना देख रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज के NSB रोड स्थित श्रीराम फाइनेंस ईकॉम ब्रांच ऑफिस के तरफ से जरूरतमंद छात्राओं में स्कॉलरशिप देने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया गया, जिसमें 60 जन छात्र एवं छात्राओं को 2500 का चेक प्रदान किया गया। रानीगंज, पांडवेश्वर, बराकर एवं आसनसोल से समस्त छात्राओं यहां पर मौजूद थे। श्रीराम फाइनेंस के रीजियन ब्रांच हेड शंकर रॉय, ब्रांच मैनेजर अमित महातो, ब्रांच टीम लीडर अंकित साव, रानीगंज ब्रांच कलेक्टर मैनेजर जयंत कर उपस्थित थे। साथ ही उपस्थित थे श्रीराम फाइनेंस ईकॉम रानीगंज ब्रांच ऑफिस से सौरभ चंद्र, कौशिक चंद्र, सुप्रियोनाथ, दीप स्वर्णकार, प्रियंका नंदी। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत की गई। उपस्थित अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। বাট এটাকে অনার যে আমি একটা স্কলারশিপ পেয়েছি এটা কোম্পানি থেকে ফর মাই অ্যাচিভমেন্ট, আমার অ্যাচিভমেন্ট করেছি, আমি আমার পারফরমেন্স দিয়েছি, সেটার একটা স্বীকৃতি এইবার হিসাবে দেখা হচ্ছে। এই যে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হয়, তো ওয়ার্ল্ড কাপটার দাম কত? যে ইন্ডিয়া টিম ওয়ার্ল্ড কাপটার দাম বেশি নয়, এবার এই কাপটা যেটার জন্য পুরো ওয়ার্ল্ড, সেটার জন্য প্রচুর প্র্যাকটিস, প্রচুর খরচা করে, সেই কাপটা জেতার জন্য আমার এই যে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়া টিম জিতল, বিরাট কোহলি কাঁদছে বা ইন্ডিয়ান ক্রিকেটটা টিম কাঁদছে, বিকজ কি তারা সেন্টিমেন্টাল যে আমরা অ্যাচিভ করেছি, আমরা জিতেছি, কাপটা পেয়েছি, সেই কাপটাতে খুশি। তারা কোটি কোটি টাকা, মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা ওরা পাচ্ছে
ওর খেলার জন্য বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য, বাট ওই কাপটা পেয়েছে, দ্যাট ইজ তার অ্যাচিভমেন্ট যে আমরা জিতেছি। তো সেই হিসাবে আমি তোমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবো এই হিসাবে যে এটাকে শুধু স্কলারশিপ যে অ্যামাউন্ট আছে সেটাকে ধরবে না, এটাকে ধরবে যে আমি আমার পারফরমেন্স, আমি আমার পড়াশুনো দিয়ে আমি সেই জায়গাটা বা সেই মার্কসটা পেয়েছি, তার একটা স্বীকৃতি। স্কলারশিপটাকে সবাই এইভাবে নেবে। তো ইন ফিউচার এই স্কলারশিপটা আপনি চাকরির ক্ষেত্রে হোক বা আদার্স কোনো অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে তোমার দেখা যাবে যে শ্রীরাম ফিন্যান্স আজকের ডেটে এখনো আমাদের নাম্বার 1 অ্যাজ এ এনবিএফসি। ফার্স্ট আমি আমার কোম্পানি আমি পরিচয় করছি, যারা আগেবার ছিল তারা শুনেছে যে তুমি কোথায় থেকে স্কলারশিপ পেলে। অনেক যারা নতুন এসে তারা একটা কোম্পানিটা দিচ্ছে শ্রীরাম ফাইন্যান্স কি এটা, আমি কোথা থেকে পেয়েছি। তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে বলবে যে তুমি একটা স্কলারশিপ পেলে, ফ্রেন্ড বলবে কোথা থেকে পেয়েছি, ওই একটা আছে শ্রীরাম ফাইন্যান্স, শ্রীরামকে সবাই জানে, ও শ্রীরাম ফিন্যান্স আছে, শ্রীরাম ফিন্যান্স কি, তারা কি করে সেটা ভাবতে না, তাহলে তুমি বলতে হবে যে আমি এখান থেকে পেয়েছি, তারা হলো শ্রীরাম ফিন্যান্স হচ্ছে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি। এবার তোমাদের ভাববে এখন নন ব্যাংকিং এত টাফ ওয়ার্ড সেটা ছিল। তো শ্রীরাম ফিন্যান্স এসছে আমাদের তৈরি হয়েছে 1974 সালে, দ্যাট মিনস 51 বছর পুরনো কোম্পানি। এদের কাজ কি, মানে পেরেন্টসরা চিন্তা করবে এটা কি কাজ করে, এত ছেলেরা ভালো দেখতে করেছে, ম্যাডাম সাইন করেছে, সেটা কী করে, অনেকে কৌতূহল এটা কী করে, শ্রীরাম ফিন্যান্সের কাজ কী। শ্রীরাম ফিন্যান্স হচ্ছে এনবিএফসি কেন বললাম, আমাদের এখানে কি হয়, একটা থেকে ব্যাংক, তোমরা ব্যাংক সবাই জানো, স্টেট ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, সবাই জানো ব্যাংকের নাম। একটা হয় ব্যাংক বা আমাদের প্রাইভেটে আছে আইসিআইসিআই, এইচডিএফসি, এক্সিস ব্যাংক, অনেক রকম ব্যাংক, ইন্ডাস্ট্রি ব্যাংক আছে। শ্রীরাম ফিন্যান্সের নিয়ে ওদের থেকে অনেক বড়, বাট ব্যাংক নয়। ব্যাংক ছাড়া ব্যাংকের একটা জিনিস বাদ দিয়ে, মানে সেভিংস অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থাকে। সেভিংস অ্যাকাউন্ট জানো তো অনেকে মানুষ জানবে যে ব্যাংকে টাকা জমা, এটা বাদ দিয়ে শ্রীরাম ফিন্যান্স ব্যাংকের থেকে বেশি কাজ করে। শ্রীরাম ফিন্যান্সটা কেউ বলে যে আমার ব্যাংক হবো, আরবিআই রেডি ব্যাংকিং লাইসেন্স দেওয়ার জন্য, অনেকবার আমাদের অ্যাপ্রোচ করে, বাট আমরা নিই। তো শ্রীরাম ফিন্যান্স হচ্ছে এনবিএফসি, ব্যাংক নয়, বাট ব্যাংকের মতো কাজ করে। শ্রীরাম ফিন্যান্স যে চায় যে আমি দুটো ব্যাংকে টেক ওভার করবো, ইজিলি করবো, বিকজ অনেক ছোটো ছোটো ব্যাংক এখন এসছে, বন্ধন ব্যাংক, উৎকর্ষ ব্যাংক, অনেক কিছু ব্যাংক আছে, তাদের থেকে শ্রীরাম ফাইন্যান্স ডবল 3 গুণ বেশি মানে কি আমাদের অ্যাজ এ ফান্ড। তো শ্রীরাম ফিন্যান্স হচ্ছে সেখানে আমাদের এনবিএফসির মধ্যে দুটো থাকে, একটা ব্যাংক, একটা থাকে এনবিএফসি, নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্স। শ্রীরাম ফিন্যান্স হচ্ছে নাম্বার 1 ইন ইন্ডিয়া। শ্রীরাম ফিন্যান্স এরা কী কাজ করে, এবার কাজ হচ্ছে শ্রীরাম ফিন্যান্স কী করে। শ্রীরাম ফিন্যান্সের যে আমাদের যে ফাউন্ডার, মানে যে ক্রিয়েট করেছিল মিস্টার আর ত্যাগরাজন, উনি 2013 সালে গুগলে দেখতে পারবেন। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे न्यूज़ चैनल के लिए, यहाँ पे आने के लिए। मैं प्रेमपाल सिंह, त्रिमोली युवा कांग्रेस के जिला सचिव, साथ में जमुड़िया विधायक का प्रतिनिधि माननीय श्री हरिराम सिंह जी का। आज ये आधिकारिक घोषणा है, चूँकि हम लोग को करना पड़ता है। ये आधिकारिक घोषणा है आपका, हमारे जो पिताजी एमएलए साहब जिस पूजा कमेटी के सभापति हैं, बहुला सार्वजनिक काली पूजा, जो हर साल की तरह इस साल भी हो रही है। इसमें हर वर्ष कोई ना कोई हम लोग कलाकार लेके आते थे, वो चाहे बंगला स्टार हो, चाहे भोजपुरी स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, जिसमें हम लोग सक्षम होते थे।
हम लोग लेकर आते थे और कार्यक्रम करते थे। सारे जनता लोग उसका उत्साह करते थे, आनंद उठाते थे। इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया आयोजन। इसमें हम लोगों ने बंगाल के अपने अनुष्का पात्रो हैं, सौम्यदीप भौमिक हैं और अंतरा बैंड है, बहुत नामी बैंड है, उनका कार्यक्रम था 1 तारीख 2 तारीख को। और 3 तारीख को हमारे जो भोजपुरी स्टार बोलते थे, अब तो वो बॉलीवुड के स्टार हो चुके हैं, पवन सिंह, उनका कार्यक्रम था 3 तारीख को 7 बजे, जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया था। लेकिन किसी कारणवश, किसी सेंटिमेंट के चलते, किसी एक संगठन के चलते, अब उनके पास जिसका छत्र छाया हो हमें नहीं पता, लेकिन उनका लगातार विरोध के कारण हमने प्रशासन से भी अपील किया था इसके लिए सुरक्षा देने के लिए। प्रशासन ने बोला कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, आपका कैपेसिटी ग्राउंड का थोड़ा कम है और आपका सिलेक्शन थोड़ा कम है, तो सुरक्षा में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, हम लोग उसमें त्रुटि पूरा कर नहीं पाएंगे। इसी कारणवश हम लोगों ने सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पावर स्टार पवन सिंह, उनका कार्यक्रम 3 तारीख को हम लोग आज आधिकारिक घोषणा करते हैं कि निरस्त करते हैं। उनका कार्यक्रम बर्खास्त किया जा रहा है अगले तारीख तक। और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण हम लोग जितना कार्यक्रम है, बांग्ला आर्टिस्ट का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हो, सारा को हम लोग आज बर्खास्त करते हैं। माँ की पूजा है, हम लोग श्रद्धा रखते हैं। माँ की पूजा में हम लोग पूजा करेंगे, पंडाल भी बनेगी, लाइट भी लगेगी और मेला भी लगेगा। सारे लोग उत्साह करेंगे और इसका हम लोग भरपूर आनंद उठाएंगे। और चूँकि किसी कारणवश हम लोग को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ रहा है, तो ये 3 जन का कार्यक्रम आज से निरस्त किया जाता है। इसके ये आधिकारिक घोषणा है। कौन जो पक्ष है जो इस तरह के बार बार आप लोगों को दिक्कत दे रहा है कि नहीं होना चाहिए कार्यक्रम, क्या नाम है उनका? देखिए, संगठन बहुत तरीके के हैं, बहुत समाज हैं इसमें, किसी का इकलौता नाम नहीं बोलने से होगा। आप देख रहे हैं इसमें, जो कि हम लोग मीडिया को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, संगठन को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं दिल्ली का जो चल रहा है इस बारे में लेकर, तो किसी संगठन का नाम ना लेके इसमें अब बोला जा रहा है कि पवन सिंह ने कुछ असभ्य अभद्र गाना गाया है यहाँ के कल्चर को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार सबका होता है, वो चाहे किसी भाषा का हो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारत में किसी कलाकार की सम्मान नहीं रह पाएगी। हर वर्ग के लोग, हर कलाकार, हर क्षेत्र के कलाकार, हर राज्य के कलाकार किसी न किसी राज्य के बारे में कुछ ना कुछ असभ्य कभी ना कभी तो बोले हैं। कोई ना कोई सीन है उनका जो असभ्य है, कोई ना कोई डायलॉग है उनका असभ्य है। अगर इस तरीके से हम लोग त्रुटि निकालते रहें तो पता चलेगा कलाकार का काम करना है इस देश में मुश्किल हो जाएगा। तो कलाकार की जात नहीं होती। आप भी जानते, कोई गाने की अगर बात होगी तो लिखता कोई और है, कंपोज कोई और करता है, लिरिक्स कोई और देता है, अभिनेता कोई और होता है, अभिनेत्री कोई और होती है, गाता कोई और है। इसमें किसी कलाकार पे, एक सिंगल कलाकार पे दोष देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं किसी संगठन को। लेकिन फिर कहता हूं एक बात, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। उस तरीके से देखा जाएगा तो हमारे इस राज्य के भी कलाकार कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोले ही हैं, कुछ ना कुछ वैसा सीन किए ही हुए हैं। लेकिन कलाकार के बारे में बोलना मुझे मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका लेकर प्रदर्शन करना और इसके लेकर एक समाज को कोई गलत संदेश देना वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उसको मैं तहे दिल से मैं कहूँगा कि आगे इस तरीके का विचार ना रखा जाए। यह बंगाल की संस्कृति है, हमारी जन्म भी यहीं हुई है, हमारी कर्म भी यहीं पर है और हम लोग सबका सम्मान करते हैं, खासकर हमारे जो बांग्ला भाषी हैं। और मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि मैं अपने हिंदी भाषियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि मेरे में कुछ कमी होगी जो मैं आज ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं उनसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें, हमारे पिताजी को जो 44 साल बाद यहाँ विधायक बनकर आए हैं आप लोग के आशीर्वाद से, वो चाहे हिंदी भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी हो, आगे भी एक ही बात रहेगी कि जिस तरीके से आशीर्वाद आपने बनाए रखा है, आप लोग अपने मन में ठेस ना पहुँचाएँ। कार्यक्रम होती रहेगी, लेकिन कार्यक्रम लेकर हम लोग किसी समाज के बारे में, अगर कोई संगठन के बारे में हम लोग इस तरीके की बात करेंगे ये उचित नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें और हिंदी भाषियों से खास करके कहूँगा, आज अपील करूंगा कि आप लोग भी आज के बाद
इस विचार में, इस बारे में कहीं भी कोई सोशल मीडिया हो, कहीं भी कोई प्रेस वार्ता हो, कभी भी कहीं कोई न्यूज़ चैनल हो, किसी भी कमेंट्स में ना जाएं, किसी के साथ आप उलझन में ना रहें, किसी को आप जवाब ना दें। आप लोग दीदी के साथ थे, दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ रहिए। हमारी नेत्री की नज़र आप लोगों पर है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा सबको वो बैठ कर अपने देखने में देख रही हैं। आप लोग जैसे हमको आशीर्वाद देकर रखें आज तक, हमारे सारे हिंदी भाषियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि आप लोग इसको लेकर कोई विचार ना प्रकट करें। आज से कोई सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ना किसी को आपको जवाब देना है। जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस बंगाल में रह रहे हैं, मैं अपील करूंगा कि आगे भी इसी तरीके से सौहार्द आप लोग बनाए रखें। आप लोग हमारी नेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरीके से आशीर्वाद देते आए हैं, आगे भी उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। यही मेरा बोलना उचित है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, कलाकार की कोई जात नहीं होती है, कलाकार कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। होती है किसी को ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे यही कहूँगा कि अगर आगे भी जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान समय सिक्किम में देश भर से पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इस बीच शुक्रवार की रात को दक्षिण सिक्किम में B2 ब्रिज के पास राहगीरों ने एक अद्भुत दृश्य कैमरे में कैद किया। राहगीरों ने मोबाइल कैमरे में एक भालू को कैद किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कैमरामैनों की बातचीत से सीन समझ आ जाता है। काम से घर जाते समय उन्होंने सड़क पर एक हिमालयी काले भालू को देखा। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने राजमार्ग पर भालू के कब्जे को दुर्लभ दृश्य कैद कर लिया। सड़क पर चलते भालू का नज़ारा वायरल हो गया और पर्यटकों का उत्साह बढ़ गया। गाइस भालु हेर्नु है, भालु पत्र भालु छ भालु त्यही छ पसेर आउँछ है। त्यही छ देख्यौ त्यहाँ भिड छ कि कस्तो है ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। हुगली जिले के आरामबाग ब्लॉक के तिरौल क्षेत्र के नई सराय इलाके में पानी जमा हो गया है। पिछले 2 दिनों से कमोबेश पूरे दक्षिण बंगाल में लगातार बारिश हो रही है। हुगली जिले के आरामबाग ब्लॉक के तिरौल क्षेत्र के नई सराय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की कृषि भूमि में पानी जमा होने की तस्वीर सामने आई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों को खरीफ सीजन की धान की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। पूजा से पहले बाढ़ के कारण आरामबाग, खनाकुल, पुरसुरा, तर्केश्वर, जंगीपाड़ा और बालागढ़ ब्लॉक में फसलों की भारी नुकसान हुआ। हालांकि चक्रवात दाना का
जिले में सीधा असर नहीं पड़ा, लेकिन शुक्रवार की सुबह से हुई बारिश और तेज हवाओं से खेतों में पानी जमा हो गया है। किसानों का मानना है कि चावल की फसल और फूल नष्ट हो सकते हैं। अगर बारिश से सब्जी की फसल को नुकसान हुआ तो काली पूजा के दौरान भी सब्जियों की कीमत बढ़ सकती है। हुगली जिले के कृषि उपनिदेशक मृत्युंजय मर्दाना ने कहा कि इस वर्ष हुगली जिले में खरीफ सीजन के तहत 1,87,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई थी। दाना के प्रभाव से अभी भी बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद ही जिलाधिकारी मुक्ता आर्य के निर्देश पर क्षति का सही आकलन हो सकेगा। আপনাদের যে জমিতে জল জমেছে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে মনে হচ্ছে ধানের? ক্ষয়ক্ষতি বলতে দানার যে প্রভাবটা মধ্যরাত্রি পড়েছে, পড়ার পর আমরা যে আমাদের যে চাষি যে চাষের যে ধানের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বা হয়েছে। এই যে জমিগুলোর যা পরিস্থিতি, সব ধান পড়ে গেছে, তো আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এর আগে বন্যা ঢুকেছিল, বন্যাতেও ক্ষতি হয়েছে। বন্যার পর যেটুকু ছিল এই দানা যে ঘূর্ণিঝড় এই রাত্রি যে পড়েছে, মধ্যরাত্রি পড়ার পর সমস্ত ধান সব শুয়ে গেছে। এই ধানগুলো আর আমরা তোমাকে ছাপা করতে হবে। দেখছেন যে কী হারে চাষের ক্ষতি। এই জমিটা আমার, ধান দেখেছেন জলের সাথে ধানে একবারে লুটিয়ে গেছে। আমরা কালকে সারাদিন এবং সারা রাত্রি যাপন করেছি আমাদের দলীয় কার্যালয়ে। আমাদের দেখেছেন নির্দেশ যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সারা রাত কালকে নবান্ন ছিলেন এবং কন্ট্রোল রুম খুলেছিলেন, এবং আমরা সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে আমরা দলীয় কার্যালয়ে বসে এবং কার কী অসুবিধা সুবিধা আমরা সারা রাত্রি শুনেছি, এবং প্রচণ্ডভাবে রাত্রি থেকে 12টা সাড়ে 12টার পর থেকে জল হচ্ছে। আমরা মানুষকে স্কুলে, প্রাইমারিতে এবং ICDS সেন্টারে সমস্ত জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি যাদের কাঁচা বাড়ি আছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সারা রাত্রি যাপন করেছেন সেটা নবান্নে। আমরা কর্মী হিসাবে, আমরা ঝান্ডাধর একটা কর্মী, বুথ লেভেলের কর্মী হিসাবে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।